Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here with a new topic to discuss. I will discuss about journal safety management system. Parallel to quality management system and environmental management system, organizations also develop their own safety management system. And with the help of its safety management system, organization try to reduce occurrence of unpleasant incidents or accidents. As you all know, unpleasant events or situations are part of work. They are unavoidable. We cannot spare from the occurrence of unpleasant event. So now organizations need some proper mechanism to handle such unpleasant occurrence. And it is also a legal and moral obligations for organizations to maintain and control safety of all workers. A small level business in a low risk industry has simple safety concern, but a large scale business in a high risky industry, they may need a complete notebook, a full manual full of written policies and procedures, and full time they need a safety director, a safety team they need. So industry to industry and business to business, the requirement of this system is change where they vary in different industries and in different businesses. So let's discuss about the need of management system before getting into detail of safety management system. Number one point, the management system reflect our ways of doing work. Every organization, as you know, we discussed earlier that every organization has its own management system, which makes it unique, which makes it different from other organization, and its system actually reflect the working way of that organization. Number two point, what is most important for an organization is the system that work for it. For an organization, its system is more important. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका अपना सिस्टम अहम है बिकॉज इट सपोर्ट्स इट्स वर्किंग पैटर्न, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पैटर्न को सपोर्ट करता है. सो इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टू डिसाइड हाउ बेस्ट टू ऑपरेट अ सिस्टम ऑन वर्क प्लेस एंड पुट योर प्लान इनटू प्रैक्टिस. अब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि उसके लिए कौन सा सिस्टम बेटर है और कौन सा सिस्टम उसकी प्रैक्टिस को सपोर्ट कर सकता है, मजीद बेहतर चला सकता है. Management system grow and improve and will be a living document. Number 3 point. Organization students, they learn from their previous experience. They learn from their relevant experience and they follow their lesson. Such organizations are called learning organization. ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस से, अपने साथ वाली ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस से सीखती हैं, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं. जो न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करती हैं, दे कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. अब ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं बिकॉज वो रिस्पॉन्ड करती है ना इन्वायरमेंट को, आसपास की पॉलिसीज़ को, न्यू बिजनेस ट्रेंड को वो रिस्पॉन्ड करती हैं. दे लर्न न्यू ट्रेंड्स. सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वर्किंग डॉक्यूमेंट डेवलप कर लेती हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना लेती हैं. मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट, उनका डॉक्यूमेंट ऐसा डायनामिक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटिन्यूसली अपडेट होता है. उसमें एडिटिंग होती है, उसमें वक्त के साथ साथ, ज़रूरत के साथ साथ उसमें रिवीजन होती हैं. लिविंग डॉक्यूमेंट्स आर चेंज थ्रू रिवीजन्स. लिविंग डॉक्यूमेंट या जो डॉक्यूमेंट जो आप फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो ज़रूरत के साथ साथ, वक्त के साथ साथ रिवाइज होते हैं और फिर अपडेट होते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट सिस्टम को जैसे जैसे वो चेंज करती हैं, उनके डॉक्यूमेंट में भी तब्दीली आती है, उनका सिस्टम भी बेहतर होता है, वो न्यू तब्दीलियों को एड्रेस करते हैं. One implement a system, its policies and procedures become the part of company's culture. Organization जो भी काम करती है और उस काम को अगर वो consistently करेगी, वो उसका कल्चर का हिस्सा बन जाएगा. ठीक है, तो अब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मकसद को पकड़ के उसको फॉलो करती है, उसमें अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है, तो वो भी उसके कल्चर का एक हिस्सा बन जाएगा. तो जहाँ पे अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे तो सेफ्टी पे काम करना भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक सेफ्टी कल्चर डेवलप कर लेगी. सो ये हुई बात हमारी मैनेजमेंट सिस्टम की.
अब एक जनरल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम लेते हैं कि एक जनरल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. इट्स अ जनरल टर्म. ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारे एक जनरल टर्म है that refers to all those efforts to protect the employees from hazards and associated risk with workplace. यानी ये टर्म जो है ये शो कर रही है कि आप अपनी वर्क प्लेस के साथ जुड़े हुए जितने भी हैजर्ड्स हैं, जितने भी अनप्लेजेंट इवेंट्स हो सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉलिसीज भी बना रहे हैं, वो आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा. As you know, detail about the term of safety we earlier discussed. Safety क्या है? Safety is about preventing workers from being injured. ठीक है, safety क्या है? Workers को, पर्सोनल को किसी भी किस्म की इंजरी से बचाने का नाम है. वो कैसे बचाएंगे? बाय टेकिंग द राइट प्रिकॉशंस एंड बाय प्रोवाइडिंग अ सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग इन्वायरमेंट. हम उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स दे के या फिर हम उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देके हम उनको इंजर्ड होने से बचा सकते हैं. So a safe working environment is very much necessary for worker because a safe working environment can increase productivity of workers. They can reduce staff turnover and they can reduce staff illness, absence. Safety, students, we cannot take it for granted. We can achieve with the effort of everyone in the organization. Safety भी हमारी एक ऐसा टारगेट है जिसमें जब तक हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई उसके साथ कमिटेड नहीं होगा, हर कोई उसके साथ सिंसियर नहीं होगा, आप सेफ्टी का ये टारगेट भी, ये ख्वाब भी अचीव नहीं कर सकते. तो सेफ्टी भी आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर किसी को उसका पार्ट बनना पड़ेगा. ओके, नाउ कम्स टू सेफ्टी मैनेजमेंट डेफिनेशन. सेफ्टी मैनेजमेंट की इस स्लाइड में मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं, आप इसमें से कोई भी इसकी डेफिनेशन उठा सकते हैं. देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट पहले देखिए. वी नीड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज. हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. एंड फॉर दिस वी यूज सर्टेन प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस in order to prevent incident, accidents, injuries and any type of other risk. हमें सेफ्टी मैनेजमेंट करते हुए ऐसी एक्टिविटीज, प्रिंसिपल, फ्रेमवर्क या प्रोसेसेस को यूज करना है जिससे ऑल टाइप ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स जो है वो कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं. ये है एक अंदाज सेफ्टी मैनेजमेंट को डिफाइन करने का. एक और तरीके से भी आप सेफ्टी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो देखिए. Safety management system is a comprehensive management system that is designed to manage safety elements at workplace. के सेफ्टी मैनेजमेंट एक कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है जो इसलिए बनाया जाता है कि वर्क प्लेस पे जितने भी सेफ्टी के इश्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको हैंडल किया जा सके. ठीक है, और एक हेल्दी, एक अच्छा वर्क प्लेस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके सारे वर्कर्स को. ओके, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम is tailored according to the size and complexity of your organization. Tailored मतलब develop, बनाना. So student, safety management system is not a magic, not a rocket science. It is designed according to the size of an organization. स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम उतना स्मॉल होगा. लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफ़ी कम्प्लेक्स होगा, काफ़ी उसके अंदर भी वर्किंग करनी पड़ेगी, मैनुअल्स डिटेल में बनाने पड़ेंगे. सो एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक अच्छा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बनाने के लिए हमें सिस्टमेटिकली सेफ्टी को मैनेज करना पड़ेगा. सिस्टमेटिकली हमें अपनी पॉलिसी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, हमें एक टीम लेके चलनी पड़ेगी, वो टीम पॉलिसीज बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करे, फॉलो अप ले. सो एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है एक अच्छे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. An effective safety management system includes policies, procedures, objectives, plans, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर मेजर्स. सेम यही बात मैंने अभी की. एक अच्छा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखेगा. ठीक है, उसमें प्रॉपर पॉलिसी होगी सेफ्टी की, उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड.
एंड प्लान्स होंगे, उसमें स्मॉल प्लान होंगे, प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा सेफ्टी इश्यूज को, और बहुत सारे दूसरे मेजर्स जो हैं वो इस सेफ्टी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं. नाउ come to the second point. It should be fully documented, accessible and comprehensive to those that need to use it. एक ऐसा सिस्टम जो है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो सबके लिए accessible हो. ठीक है, जो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे सेफ्टी मैयर से आगाह होना बहुत ज़रूरी है. उससे फ़ायदा लेना हर किसी का राइट है. सो एक डॉक्यूमेंट हो, फुली डॉक्यूमेंट हो, वो हर किसी की असेस में भी हो. वो फुली डॉक्यूमेंट जब किसी को ज़रूरत पड़े, कोई पुराना डाटा देखने के लिए या पुरानी मैयर्स लेनी है, उसमें करंट कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, अब पुराने किसी और टाइम पीरियड पे क्या डिसीजन लिया गया, अब वो पढ़ना हो, वो देखना हो, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो हर किसी की असेस में हो कि उस डॉक्यूमेंट को रीड्राइव करके सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सके. Written document is necessary for monitoring and improving all safety aspect of operation. जैसे हमने क्वालिटी में देखा, इन्वायरमेंट में देखा कि हम एक अच्छा मैनुअल डेवलप करते हैं जो हमारी वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग को शो करते हैं. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में भी आप एक प्रॉपर मैनुअल डेवलप करेंगे जिसमें आप अपने सेफ्टी के सारे ऑपरेशंस का जिक्र करेंगे, काम करने के प्रोसेसेस का जिक्र करेंगे, कोई इंसिडेंट अगर होगा उसको कैसे हैंडल करेंगे उसका जिक्र होगा, कॉन्टीजेंसी सिचुएशन में किसको रिपोर्ट की जाएगी, कैसे उस रिपोर्टिंग को ड्राफ्ट करना है, कैसे उसको आगे पहुंचाना है, वो सारे तरीक़ेकार आपके उस मैनुअल के अंदर ड्राफ्ट होने चाहिए. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ्टी प्रोग्राम्स कैन हेल्प अस टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग वर्कप्लेस एनवायरनमेंट. देखिए, हमारा जो भी पर्पस हो सेफ्टी प्रोग्राम लेने के पीछे, उसका फ़ायदा जो है ऑर्गेनाइजेशन को होगा. ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे ना सिर्फ एक अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयज़ की इलनेस भी कम से कम होगी, उनकी एब्सेंटीज भी कम होंगी, उनकी इंजरीज भी कम होंगी. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसका सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. देखिए, दोनों में आप मैनुअल डेवलप करते हैं, दोनों में आप अपनी पॉलिसीज़ को लिखते हैं. क्वालिटी में और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ये सिमिलैरिटी है, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, ताकि वो कहीं पे भी उस चीज़ को दोबारा से यूज़ किया जा सके. ये सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर. फोकस दोनों का अलग अलग है. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फोकस क्वालिटी है एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में इसका ताल्लुक है. ओके, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स अगर हमने देखने हो तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इन 3 एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. पहली बात, टू इंश्योर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड रियल और पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड एसोसिएटेड रिस्क. कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन है, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि हैजर्ड्स क्या है, उसके पोटेंशियल रिस्क या हैजर्ड्स उसके आसपास जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं. एवरीवन शुड नो. नंबर 2, to prevent or control operational hazards and associated risks. अब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू उन हैजर्ड्स को कम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें. नंबर 3, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो एम्प्लॉयज़ की ऑल लेवल कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि हैजर्ड्स नज़र आ रहे हैं उनको, उनको कैसे वो एक्सपोज करें, कैसे उसको उससे अपने आप को बचाएंगे, कैसे उससे दूसरों को बचाएंगे और कैसे उसके बारे में वो आगे आगाह करेंगे. सो एक ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी मौजूद हो. ये 3 एम्स होने चाहिए किसी भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के. नंबर 1, हैजर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो, पोटेंशियल रिस्क कहाँ से मिल सकता है वो मालूम हो, फिर उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए सारा एक मैकेनिज्म डेवलप हो, और तीसरी बात, एक ट्रेनिंग, एक कम्युनिकेशन पैटर्न भी मौजूद हो, कैसे आप बाकी लोगों को उसके बारे में कम्युनिकेट करें, कैसे उस पोटेंशियल हैजर्ड्स की मौजूदगी को दूसरों तक पहुंचाएं. सो दीज आर द एम्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. आगे मूव करें. एक मुकम्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कि 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं. अब जैसे हमने पहले बात की कि साइज़ के हिसाब से और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करेगी. तो लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज़ें होनी चाहिए वो यही 5 चीज़ें होनी चाहिए. एक मुकम्मल सेफ्टी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हों कि क्या प्लानिंग करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन किसको मॉनिटर करेगा, सुपरविजन पैटर्न क्या होगा, चीज़ों की रिपोर्टिंग कैसे करनी है,
मुकम्मल एलिमेंट्स हों। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। फिर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अब आपने जिन जिन रिस्क के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था उसकी असेसमेंट करनी है कि आप किस हद तक कामयाब हुए हैं उस रिस्क को, उस हैजर्ड्स को कवर करने के लिए करने से। और नंबर लास्ट पे आपके वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिसोर्सेज अवेलेबल हों, इंफॉर्मेशन मैनुअल अवेलेबल हों, जब भी ज़रूरत पड़े आप उस मैनुअल से, उस बुक से फ़ायदा उठाएं, आपके रिसोर्सेज किस फॉर्म में मौजूद हैं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ये 5 बड़े एलिमेंट्स हैं, 5 बड़े पार्ट्स हैं सिस्टम के, ये आपने नहीं भूलने हैं। एलिमेंट्स, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट और रिसोर्सेज। अगेन बता रही हूँ, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स, इसी के डेवलपमेंट कैसे करनी है, इसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और जिस रिस्क के लिए, जिस हैजर्ड्स को कम करने के लिए आपने पूरा काम किया है उसकी असेसमेंट करनी है, और फिर बाद में मैनुअल को, उस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है वो। ओके, एलिमेंट्स, सबसे पहला पॉइंट एलिमेंट्स। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स में 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या चीज़ होना ज़रूरी है? एक प्रॉपर प्लान हो, एक स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन हो कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, आपका मकसद क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का, वो क्लियर हो आपका। ठीक है, उसको आपने एक अच्छी स्टेटमेंट की सूरत में क्लियर करना है ताकि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को राइट डाउन करना है। देखिए, ये चीज़ वर्बल नहीं होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, ताकि इसमें आप हर किस्म के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस, हर किस्म के मेथड्स, प्रोसेसेस, तरीक़ेकार को लिख लें ताकि वो हर एक तक वो चीज़ पहुंच जाए कि हर एम्प्लॉय से किस किस्म के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है, वो किन पॉलिसीज़ को फॉलो करे, वो कौन से प्रोसीजर्स को अपने जहन में रखे अपने काम को परफॉर्म करते हुए, उसे अपना काम जो है परफॉर्म कैसे करना है, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका सेकेंड जो एलिमेंट है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, इसका ताल्लुक जो है डॉक्यूमेंट से है, रिटन फॉर्म मैनुअल डेवलप करने से। फिर बात होगी ट्रेनिंग एंड इंडक्शन कि अब आपने इंटरनली और एक्सटर्नली सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं, सेमिनार्स बनाएं, आप कम्युनिकेट करें, आप अपने स्टेक होल्डर्स को बताएं कि आप अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, सेफ्टी बुलेटिन के थ्रू, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, छोटे छोटे इंटर ऑफिस मेमोज के थ्रू आप कम्युनिकेट करें। ठीक है, कि अभी हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करने जा रही है, तो सारे जो है ना वो लोग आगाह हो जाएं कि इस काम को सॉरी कैसे करना है। यानी इसमें जो आपके एक्शंस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करने की कोशिश करें, एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश करें ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑन बोर्ड आ सके, वो सारे इस सेफ्टी प्लान को समझ सकें, सेफ्टी प्रोग्राम की अहमियत को समझ सकें। तो ट्रेनिंग इंडक्शन तो इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर आपने मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन भी करनी है। देखिए, प्लान बहुत अच्छा है, अब उस प्लान को आपने जब तक एक कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल तरीके से नहीं चलाएंगे आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि आप ऑन ट्रैक परफॉर्म कर सकें। सुपरविजन बहुत ज़रूरी है ताकि सुपरविजन जो है वो आपके मेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो बढ़ाती है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को ज़्यादा इन्हेंस करके देती है कि आपने जो रिज़ल्ट्स लेने हैं वो रिज़ल्ट जो है एक अच्छी सुपरविजन से ज़्यादा मुमकिन है। फिर रिपोर्टिंग भी आपने करनी है, एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि आपने ऑल लेवल पे कौन किसको कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट जो है उसको अपनी यहाँ पे कमिटमेंट दिखानी है, उसको अपना यहाँ पे रोल एक्टिव करना है, उसको बाकायदा दिखाना है परफॉर्म करके कि आपकी रिपोर्टिंग पे किसी भी किस्म की हैजर्ड की रिपोर्टिंग की सूरत में वो कैसे एक्शन लेती है। तो यहाँ पे एक रिपोर्टिंग पैटर्न शो होगा, हायरार्की बनाई जाए कि कैसे जो है एक हैजर्ड की कम्युनिकेशन ऊपर तक करनी है ताकि उसके बारे में फ़ौरन कोई पॉलिसी की डेवलप हो सके, फ़ौरन मैनुअल में कोई तब्दीली हो सके, फ़ौरन उसके बाद बारे में लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, कोई मॉनिटरिंग उसकी मुकम्मल तौर पे की जाए। सो ये एलिमेंट्स हैं किसी भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, कमोबेश यही होंगे।
उसके बाद चलें कि एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आप डेवलप कैसे करेंगे। एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आप डेवलप करने के लिए आपको 3 स्टेप जो है ना उसको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप ये कि आप अपना एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करें। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक टीम बनाएं, उसमें कोई पोजीशन ऐसी डेवलप करें जो रिस्पॉन्सिबल हो, वो अकाउंटेबल हो उस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के काम के बारे में। ठीक है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, कैसे इनिशिएटिव्स को लेना है। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को अपना एक मुकम्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके बाद दे हैव टू सेट अप अ प्रोसेस टू फैसिलिटेट कंसल्टेशन विद वर्कर्स अबाउट सेफ्टी मैटर्स एंड दैट अफेक्ट देम। अब आपने वर्कर्स को कंसल्ट भी करना है। ठीक है, वर्कर्स को सुनना भी है, उसको समझाना भी है, यानी एक कम्युनिकेशन एक ट्रेनिंग प्रोसेस करना है। अब आपको सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए उस मैकेनिज्म को इन एक्शन भी लेके आना है, वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है, उनका फीडबैक सुनना है ओपन तरीके से। ठीक है, कि वो चीज़ों के कैसे समझ रही हैं और इनफैक्ट उनको कैसे समझना चाहिए। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वो ओपनली जो है हैजर्ड्स के बारे में कम्युनिकेट कर सकें और सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए जो उनके जहन में बहुत सारे पॉइंट्स हों वो उनको क्लियर कर सकें। देन लास्ट पे, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी मस्ट डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, जो उसके वर्किंग नेचर है उसके हिसाब से हमने अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर की डेवलपमेंट करनी है। हैजर्ड्स मैनेजमेंट कैसे करनी है उसके बारे में पॉलिसीज तय की जाएंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, किसी हैजर्ड्स की कम्युनिकेशन करनी है उसको कैसे, किन फॉर्म्स के थ्रू जो है या किन रिसोर्सेज के थ्रू है वो कम्युनिकेट करना है। सो हर किस्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर को पेपर फॉर्म में डेवलप करेंगे हम। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम चलें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोई ये 6 किस्म की टिप्स हैं यहाँ पे। नंबर 1 देखिए, सिक्योर मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लेके आना है। टॉप मैनेजमेंट को अपना विजन डिक्लेयर करना है, अपना मिशन डिक्लेयर करना है टुवर्ड्स सेफ्टी, अपने आप को पैशनेट शो करना है ताकि उससे निचले जो लोग हैं वो भी मुतासर हों, वो भी उनके साथ मिलकर भी काम कर सकें। नंबर 2, ऑडिट योर एग्जिस्टिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स। आप अपना सेफ्टी मैनुअल डेवलप करने से पहले आप कहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स को एक दफ़ा ऑडिट कर लें। ठीक है, फिर वहीं से आप अपना काम शुरू करें कि जो जो चीज़ें आपकी सेफ्टी के बारे में मौजूद थी उसमें क्या चीज़ों की तब्दीली ज़रूरी है, अब आप वहाँ पे उसका ऑडिट करके वो गैप को आइडेंटिफाई कर लें। नंबर 3, सेटअप एंड इम्प्लीमेंटेशन टीम। आपने एक टीम बनाएं जो इफेक्टिव हो, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड हों। टीम बनाइए ताकि आपका काम आगे मूव करें। उस टीम में रोल्स डिफाइन करें, टाइमलाइन डिफाइन करें कि कब तक हमने ये टास्क पूरा कर लेना है, कब तक हमने अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है ना वो बना लेने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपस में तय करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको मतलब आपको मालूम है कि अकाउंटेबिलिटीज़ भी ज़रूर होती हैं। जो जो जिस जिसके पास अथॉरिटी होती है ना वो किसी ना किसी टाइम पीरियड पे उसके लिए जवाबदेह भी होता है कि उसने अपनी अथॉरिटी को कैसे यूज़ किया है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ तय हों। फिर उसके बाद जी गेट योर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व बाय ऑफरिंग रिसोर्सेज। अब आप उनको ट्रेनिंग दें, रिसोर्सेज की प्रोवाइडिंग करें उनको ताकि वो काम को उस अंदाज से परफॉर्म भी करें जो तय किए गए हैं। उसके बाद ये रिव्यू योर मैनेजमेंट सिस्टम, आप रिव्यू भी करें। ठीक है, सालाना, माहाना, वीकली आप अपने काम को रिव्यू भी करें। वो कमेटी जो है मिलके बैठे भी और अपने कामों को एक दफ़ा देखे भी कि कितने कितने टारगेट्स जो है ना वो अचीव हो गए हैं। अच्छा, ये होगी 6 टिप्स कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट। जी, नंबर 4 स्टेप था सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का कि रिस्क की असेसमेंट करनी। अब रिस्क की असेसमेंट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स। हैजर्ड्स आपको मालूम है कि कोई पोटेंशियल ख़तरा है, कोई हिडन ख़तरा है जिससे कोई कोई इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है। नाउ मैनेजमेंट हैव टू हैव अ ड्यूटी टू असेस सेफ्टी रिस्क। अब उससे क्या हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट जो है ना एक्टिवली पॉसिबल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद नंबर 2 स्टेप पे डिसाइड हु कैन बी हार्म एंड हाउ। इस चीज़ को तय करें कि इससे कौन मुतासर हो सकते हैं। ये जो ख़तरा है, पोटेंशियल हैजर्ड्स मौजूद है, इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने वाले एम्प्लॉयज़ मुतासर हो सकते हैं, इसके पास गुजरने वाले, इसके साथ गुजरने वाले लोग मुतासर हो सकते हैं, इस प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस वाले लोग मुतासर हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट मस्ट असेस हैजर्ड्स फेस्ड बाय एम्प्लॉयज़। नंबर 3 पे assess the risk and
take actions. Now management must understand that each hazard could harm anyone and it must try to reduce. अब वहाँ पे कोई अपने स्टैंडर्ड अप्रोच लेनी है ताकि उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन प्लान आपने प्रॉपर बनाया हो कि अगर ये हैजर्ड अगर हो जाए तो उसको कैसे कवर करना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर हो, क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ौरन हो, कोई फिजिकल ट्रीटमेंट फ़ौरन हो, कैसे उस चीज़ को कवर किया जाए उसको तय करना है. नंबर 4 स्टेप पे यू हैव टू रिकॉर्ड द इम्प्लीमेंटेशन. आपने उस रिस्क को असेस ख़त्म करने के लिए जो भी एक्शन लिए वो रिकॉर्ड फॉर्म में मौजूद हों. सो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि कौन सी असेसमेंट, कौन सा जो सोल्यूशन था, जो कौन सी मेजर ली गई थी इस सिचुएशन के अंदर. ठीक है. और नंबर 5 पे आप रिव्यू करेंगे पूरे असेसमेंट को कि इस पूरा जो काम हमने परफॉर्म किया कि हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, उससे को अगर कोई मुतासर हुआ, उस अगर मुतासर एक्चुअली हो गया तो क्या आपने एक्शन लिए, आप क्या एक्शन ठीक थे या नहीं ठीक थे, इसको आप एक दफ़ा बैठ के रिव्यू करेंगे कि क्या वो एक्शन लिए गए थे वो ठीक है या उसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए, क्या उस सीक्वेंस में कोई बेहतरी लेके आनी चाहिए या कोई और चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए. इस सेफ्टी मैटर में, इस सेफ्टी मैटर को कुछ बेहतर करने के लिए कोई और सोर्स, कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए या वट एवर. सो ये असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एक बड़ा प्रोसेस है जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है. आगे मूव करते हैं. आगे हमारे पास रिसोर्सेज हैं. आपका जो भी मैनुअल है वो असेसेबल हो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए. आपके किसी भी डिपार्टमेंट में उस मैनुअल से किसी को हेल्प चाहिए तो वो मैनुअल जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो, उसको कम्युनिकेट किया जा सके. तो एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के यहाँ पे मुकम्मल हो गए सारे एलिमेंट्स, सारी नॉट एलिमेंट, सारे आम पार्ट्स कंप्लीट हो गए. यहाँ पार्ट्स जैसे मैंने आपको बताए, इस आम पार्ट्स के 5 हिस्से थे. एलिमेंट्स, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी, डेवलपमेंट कैसे करनी, और अभी रिस्क असेसमेंट, और अभी हमने देखा रिसोर्सेज, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को. सो यहाँ पे आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में होनी क्या चीज़ें चाहिए वो कवर हुई. तो इस पूरे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ें अहम हैं. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इनके नाम चेंज हो सकते हैं या इनकी एप्लीकेशन चेंज हो सकती है. स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर ही हम कवर करते हैं कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुमकिन हैजर्ड्स कौन से हो सकते हैं. बहुत सारे हैजर्ड्स हो सकते हैं. यहाँ पे हमको 4 हैजर्ड्स ही की बात करेंगे: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल. फिजिकल हैजर्ड्स वो जिससे फिजिकली आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिजिकल हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं. जैसे माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें फिजिकल हैजर्ड होने के तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो नीचे एग्जांपल्स भी हैं आपके पास मौजूद हैं कि फिजिकल हैजर्ड्स की क्या शेप होती हैं. कोई नॉइज़ की वजह से आप मुतासर हो सकते हैं, आपके वर्किंग स्पेस बहुत कम है, या बॉडी स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत लिफ्टिंग कर रहे हैं किसी वजन की, उसकी वजह से बॉडी पे उसका कोई असर पड़ रहा है, वाइब्रेशन में काम कर रहे हैं, वो भी आपकी बहुत सारी मसल के लिए, सेहत के लिए, आपकी नैरो पोजीशन के लिए आपके लिए नुकसानदेह है. कंप्यूटर एप्लीकेशन से या कंप्यूटर इक्विपमेंट से निकलने वाली रेडिएशन आपके लिए फिजिकल एक हैजर्ड है. केमिकल हैजर्ड, देखिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे केमिकल से भी खेल रही होती है, उसे अपनी प्रोडक्ट बना रही होती है, किसी प्रोडक्ट का वो हिस्सा होती है. समटाइम एक केमिकल या बहुत सारे केमिकल भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो इंसान की हेल्थ को मुतासर करता है. समटाइम वो स्किन के साथ इंटरेक्शन की सूरत में, समटाइम वो इंसान के अंदर चला जाएगा, या सांस की सूरत में उसकी सांस की नालियों तक वो केमिकल सब्सटेंस जा सकते हैं, तो इसके भी नुकसान निकल सकते हैं. बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ इम्प्लॉय जा सकता है. फिर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स देखें. बहुत सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जो हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक पार्ट यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर कह लें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके डिस्पोज ऑफ होने के बाद, उसके वेस्ट होने के बाद जो है वो चीज़ें वहीं पे मौजूद हों, तो वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं. फिर मैकेनिकल हैजर्ड्स देखें. जो मशीनरी यूज़ हो रही होती है, अगर वो प्रॉपरली यूज़ ना हो, उसके कोई सेफ गार्ड मेजर्स ना हो, कोई सेफ्टी के साथ वो मशीनें ना चलाई जा सकें, तो वो मशीनें भी बहुत सारे हैजर्ड्स इंसान के लिए लेके आती हैं. तो ये 4 हैजर्ड्स यहाँ पे कवर हुए. आगे देखिए इन हैजर्ड्स को आपने कंट्रोल कैसे करना है. ऑर्गेनाइजेशन अपने पॉसिबल हैजर्ड्स को उसकी एक लिस्ट बना ले, और उस लिस्ट में जो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी निकाले, और उन कॉन्सिक्वेंसेस के जब सामने वो अगर हो जाएं तो फ़ौरन क्या वो मेजर्स लेने चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट बना के वो सबके साथ शेयर करेंगे. देखिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कोई एक गुड हाउस कीपिंग प्रोसीजर्स को
लिस्ट बना के सबके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करती रहे। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती हैं, क्या मेडिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए एम्प्लॉय को, वो सबके साथ शेयर हो। उसके बाद अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ ही इम्प्लीमेंट करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इंसिडेंट्स के बाद थोड़ी सी हम और यहाँ पे करते हैं। इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल इंसिडेंट्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इंसिडेंट वो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है वो अक्सर अकर होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल इंसिडेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट पे नुकसान पहुंचाते हैं। जो इंटरनल एक्सीडेंट्स हैं वो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को मुतासर करते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। कोई बड़ी इंजरी हो सकती है, लार्ज स्केल कोई डेथ हो सकती है, कोई इंस्टॉलेशन, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। अच्छा जी यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स की। एक्सटर्नली लीकेज हो सकती है केमिकल की, फायर की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, वे बहुत सारी बातें। इसी तरीके से इंटरनल इंसिडेंट्स जो हैं इंटरनली मशीनरी के सेफ गार्ड्स ना होने की वजह से कुछ ऐसे हो जाए वर्किंग जो मुतासर करें एम्प्लॉयज़ को। एक अच्छा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और आपने जो पॉलिसीज़ डेवलप की हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कम्युनिकेट भी किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको अपने स्टेक होल्डर के साथ भी कम्युनिकेट किया जाए कि हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए ले रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आप अगर हाईलाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके रिसोर्सेज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अगर कोई भी सेफ्टी, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम ले लें, जब तक आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है आप सक्सेस नहीं पा सकते। दूसरी बात, आपका जब तक आपकी कंपनी का हर बंदा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, आप अपना कोई भी टारगेट, कंबाइंड टारगेट अचीव नहीं कर सकते। सो पर्सोनल भी अवेयर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, वो ट्रेंड होना चाहिए, वो आपके साथ मौजूद होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट सबको आनी चाहिए। रिस्क हैजर्ड्स की, पोटेंशियल हैजर्ड्स की जब तक अवेयरनेस नहीं होगी एक आम इंसान को भी, वो रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकता। तो जब आप सबको ऑन बोर्ड लेके चलेंगे तो रिस्क असेसमेंट में भी वो सारे आपके साथ होंगे। आप अपने हर मैनेजमेंट सिस्टम को डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। एक लिखी हुई चीज़ में तब्दीली लेके आना मुमकिन है और उसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात ख़त्म होती है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपने अगर मज़ीद कुछ पढ़ना हो तो आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। आप एक जनरल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में गूगल से, रिसर्च पेपर से, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस पर हम ओपन डिबेट भी रखेंगे। थैंक यू।